वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख ने समझना है गुरु नू समझे बिना, गुरु नू जाने बिना, गुरु नाल जुड़े बिना कोई सिख नहीं है। इतनी गल स्पष्ट है। अगर कोई पुत्र है तो किसे पिता करके, पिता दी होंद करके। अगर कोई सिख है तो गुरु दी होंद करके। पर एक पुत्र नूं पिता दी होंद दा बोध ना होवे और साहिबा ने तो एक बड़ी सुंदर दलील दी है, जो बेसवा के घर पूत जन्मत है तिस नाम परयो है द्रकुटी। द्रकुटी उस बच्चे नूं कहंदे ने जिसनों अपनी वल्दियत का ना पता होवे, पिता दी होंद दा ना कौन प्यो है, कुछ भी बोध ना होवे। ये पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी। जो बेसवा के घर पूत जमत है तिस नाम परयो है त्रकटी। पुत्र ते है किसदा है कुछ पता नहीं, कोई बोध नहीं। मनुखी जगत विच ये सब तो वड्डी गाल बन गई जिस बच्चे नूं अपने पिता दी होंद दा कोई ज्ञान नहीं, कोई पता नहीं। बड़ा सभ्य शब्द वरत्या है पातशाह दी बाणी ने, सभ्य। वरना इस तो नीवें शब्द सारी दुनिया दी भाषावां विच मौजूद ने उस बच्चे लई जिन्हों अपने पिता दी होंद दा कोई ज्ञान नहीं। उदालक एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध संत होया, ऋषि होया। किसे देवदासी दा बच्चा सी, आश्रम दे च पढ़न ले गया तो कहंदे ने वल्दियत पूछी गई। इसने हाथ जोड़ के कहा, चूंकि मैं सच पढ़न लई आया, सच नू समझण लई आया, सच नाल जुड़न लई आया, तो सच्चाई ये है कि मैनू पिता दी होंद दा कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं। खैर इते में विचकार गल आ गई। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च ये ख्याल गालबन 3-4 थावां ते आया है। ज्यों बेसवा के घर पूत जमत है तिस नाम परयो है त्रकुटी। ये गल वखरी है कि शर्मसार ये बच्चा एवें ही किसे दा नां ले लवे। ऐसा भी होया सारी दुनिया च। फलाना मेरा प्यो सी, नाम भी दस देवे, ताम भी दस देवे, जद के ना होवे। ये पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी। ज्यों बेसवा के घर पूत जमत है तिस नाम परयो है त्रकुटी। पिता दी होंद तो बिना पुत्र दी होंद हो नहीं सकती। कोई पुत्र है तो प्यो करके है, ते प्यो दा बोध नहीं, प्यो दा ज्ञान नहीं, प्यो दा पता नहीं, तो सारी दुनिया विच गाल है एक। अगर इस शब्द दे भी सही मैने अज दी प्रचलित भाषा विच अर्थ करिए तो गाल ही बनते हैं। ये भी महर्ज करते हैं। ज्यों बेसवा के घर पूत जमत है तिस नाम परयो है त्रकुटी। सिख दी होंद गुरु करके है
ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਖਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਐਸੇ ਦਰਖਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਲਦੀਅਤ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇਂਦਾ, ਕੁਝ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਦਾਸ ਪੂਨੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 80-85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8-9 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 50-60 ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਾਲਬਨ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਦਾਸ ਗਏ 400-450 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਮਾਵਾਂ ਛੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਲ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਗੋਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਵਲਦੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਅਨਾਦੀ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਿਸ ਨਾਮ ਭਰਿਓ ਹੈ ਤ੍ਰਕਟੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਉਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਵੇ ਬਣਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਰੂਪ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ।
इसे यतीम खाने तो इनू वेख के मेरा हिरदा द्रव जाता है, करूप है। इस वास्ते जे मैं किसी होर बच्चे को 1 मिनट खड़ा होना, ये कोल 10 मिनट, जे किसी होर बच्चे नाल 2 गल्लां करदा तो ये 50 गल्लां करदा, इनू महसूस ना होवे मेरा कोई नहीं। और मैं करूप हाँ, मेरे कोल कोई खड़ा भी नहीं आंदा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, बने होए कोई रब्बी कुदरती संस्कारां दे मुताबक उस बच्चे दा सारी दुनिया दे मनुखी जगत दे सन्मान नहीं है जो अपने प्यो दा नाम नहीं जानदा, धाम नहीं जानदा। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं भी ये ख्याल देना पिया, ज्यों बेसवा के घर पूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रकुटी। पुत्र दी होंद बनदी है प्यो करके, सिख दी होंद बनदी है गुरु करके। प्यो दा पता ही नहीं ये पुत्र त्रकुटी है, गुरु दा पता ही नहीं, गुरु दा ज्ञान ही नहीं, गुरु दा बोध ही नहीं, तो इंज कह लिए सिख सिख नहीं है। सिख दी होंद ते गुरु करके बनदी है। दुनिया दे बहुत ऐसे घट बच्चे ने, थोड़े ने, ज्यादा नहीं ने सारी दुनिया जिन्हां नूं पिता दी होंद दा ज्ञान ना होए। पर इस तरह के मनुखा नाल सारा संसार भरिया पिया जिन्हां नूं गुरु दी होंद दा कोई ज्ञान नहीं, गुरु दी होंद दा कोई पता नहीं। और मैं अर्ज करा, ये 2 पिता समान मने जाते हैं, पिता और गुरु। पिता बिंदी पिता है, गुरु नादी पिता है। एक दे मनुख बिंद तो पैदा होंदा है, एक दे मनुख शब्द तो पैदा होंदा है। नाद कहते हैं शब्द तो, नादी बिंदी। संतान भी 2 तरह की आउंदी है, नादी बिंदी। और पिता भी 2 तरह के आउंदे ने, नादी बिंदी। जे असीं गुरु नानक नूं कलगीधर नूं पिता कह देंदे हां तो बिंदी नहीं, उन्हां दी बिंदी संतान 4 साहिबजादे सन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। असी उन्हां दी नादी संतान हाँ, शब्द तो पैदा होए, उपदेश तो पैदा होए, ज्ञान तो पैदा होए, हुक्म तो पैदा होए, मंत्रां तो पैदा होए, बोलां तो पैदा होए, खालसे दा जन्म 5 बाणियां दे पाठ अमृत दे छकण तो पैदा होए। शब्द दी विचार तो सिखी दा जन्म होया, सिखी सिखिया गुरु विचार। तो हुण मैं अर्ज करा, बिंदी पिता दा बोध नहीं, ज्ञान नहीं, उस बच्चे दा सन्मान नहीं है। पर नादी पिता दा बोध नहीं, तो यकीन जानो धार्मिक दुनिया दे, वास्तविक धार्मिक दुनिया दे उस मनुख दी कोई गल नहीं। ये गल वखरी है, धन संपदा वेसमावां कोल भी आउंदी है और डाकुआं कोल भी आउंदी है, कई दफा आम लोकां नालों ज्यादा आउंदी है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। ये गल वखरी है कि दौर अपना अपना है। अज तो चंद सदियां पहले चले जाइए तो प्रथम नंबर ते गुण सी, पहले गुण पूजिया जांदा सी, धन नंबर दूसरे ते सी, प्रभता नंबर तीसरे ते सी। प्रथम गुण सन, प्रथम धर्म सी। जे दशरथ दी सभा विच विशिष्ट आ जाए तो दशरथ नूं सिंघासन छोड़ना पैंदा सी। सिंघासन ते विशिष्ट बैठदे सन ओ विशिष्ट जो जंगल विच मामूली जिहां कुटिया च रहिंदा सी, और जिहदा आश्रम भिक्षा ते चलदा सी, कुछ भी नहीं सी। ओ दशरथ जो राजा है उन्होंने थल्ले बैठना पैंदा सी। बहुत लंबे समय तक ऐसा होया है, ऐसा चलता रहे। लेकिन सहजे सहजे मनुख बाहरमुखी होंदा गया, अंतर्मुखी संबंध टुटदे गए।
तो जब बारमुखी होंदा गया तो फिर सन्मान भी बार, तो बार महान धन है। धन नंबर पहला हो गया, धर्म नंबर 2 ते हो गया। तो जिसनों नंबर 2 ते सुट दिता है उहदे लई वक्त होएगा तो मनुख उहदी प्राप्ति करेगा, उसके पिछे जाएगा। इस वास्ते चूंकि जिंदगी बारमुखी हो गई तो बारमुखी पिता, अस्थूल पिता, उसका अगर बोध ना होवे तो समाज घिरना नाल देखदा है, ये बच्चा ते एवें ही है, इन्हूं प्यो का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन एक दौर ऐसा लंघिया है, घिरना की दृष्टि च वो देखा जाता सी जिसनों गुरु का कोई बोध नहीं सी। पातशाह की बाणी भी कहती है, जो गुरु गोपे अपना से नर बुरियारी। गोपे कहते हैं गुपत, जिहदी जिंदगी च गुरु गुपत है, गुरु का कोई बोध नहीं, या थोड़ा बहुत है तो छुपाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, पिछे रखने की कोशिश करता है। महाराज कहते ने यह मनुख चंगा नहीं हो सकता, नेक नहीं हो सकता, बुरा है, दुष्ट है। उस तरह ही जिवें किसी नूं शरीरक पिता का, बिंदी पिता का बोध ना होवे ते जे किधरे बोध होवे ते पिछे सुटे, वो औलाद ठीक नहीं है, वो सिख नहीं है, दुष्ट है, जो अपने नादी पिता तो संबंध तोड़े। हुण मैं अर्ज करा, नाद केड़ा? नाद ओही जो परमात्मा तो पैदा होया, वो गुरु है। इसनों इंज लेना है। केड़ा नाद? जो परमात्मा तो पैदा होया। सानू किस तरह पता चले? तो जिन्हों परमात्मा चुन लैंदा है, इस नाद नूं प्रगट करो। उन्होंने जगत दे च पैगंबरी पुरुष आख्या गया, अवतार आख्या गया। उन्हों दे राही परमात्मा का नाद प्रगट होंदा है। कबीर अपने बोलों नूं इंज बयान करते हैं, कांसी ते धुन उपजे, धुन कांसी जाई, कांसी फूटी पंडिता, धुन कहां समाई। काशी घड़ियाल जिस धातु का बनता है, भारत दे च इसनूं काशी कहते हैं। वजाण वाले घड़ियाल बर्तन भी किसी जमाने च बनते सन। तांबा जस्त मिला के एक धातु जिहड़ी बनदी उहनूं कांशी करके कहते सन। पुराने बजुर्ग जरूर जानते होंगे भी कांसी दे भांडे ने। ये घड़ियाल कांसी का बनया। घड़ियाल अक्सर कांसी दे बनाते सन, कारण कि कितना भी पानी बरसदा रहे, अक्सर घड़ियाल बाहर खुली थां ते आउंदे सन, जंगाल नहीं खांदा। ये धातु नूं जंग नहीं लगता, उस तरह ही चमकती रहती है कांसी। और कांसी के बर्तनों नूं आम भारत विच पहले वरतिया जाता रहता है, क्योंकि इनू जंगाल लगता ही नहीं और खान पान उस लई ठीक मनिया गया। खैर, कबीर कहते ने घड़ियाल नूं वजाया धुन निकली, पर दसोगे धुन कित्थे समा गई? वो घड़ियाल टुट गया। उस दे चों जिहड़ी धुन निकली सी वो कित्थे समा गई? कासी ते धुन उपदे। वो जिहड़ी धुनी उपजी सी, धुन काशी जाई, काशी फूटी पंडिता, धुन कहां समाई। जिस तरह उस काशी दे चों धुन निकली, सहजे सहजे उसे ची समा गई। शब्द प्रभु तो प्रगट होंदा है, प्रभु विच ही समांदा है, परमात्मा विच ही समांदा है। जो परमात्मा तो नाद आया है, बस ये गुरु है। और परमात्मा की आवाज ही परमात्मा तक पहुंचा सकती है, किसी होर की आवाज नहीं। इंज लो, इनू मैं कोई अत कथनी ना समझ लेना, या किधरे मेरी जिद भी ना समझ लेना। गुरबाणी तो जो मैं प्रेरणा ली तो गुरबाणी जिसकी तस्दीक पई कर दी है, थोड़े सामने रख रहे हैं। तो लफ्ज एक दफा मैं फिर दोहरा दिया, दुनिया च हैं ऐसे बच्चे
जिन्हां नूं प्यो दा ज्ञान कोई नहीं, समाई दी नज़रां 'च घिरे हुए ने। इन्हां दी तादाद थोड़ी है, बहुत घट है। इन्हां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जिन्हां नूं गुरु दा कोई इलम नहीं। उंज सिख ने, गुरु दा कोई इलम नहीं। और मैं ये भी अर्ज कर दिया खुलासा करने तो पहले, सिख कोई मजहब नहीं है, फिरका नहीं है, टोला नहीं है। सिख दे अखरी अर्थ ने मैं सीखना चाहना और मैं सीखण नूं तैयार हाँ और मैं कुछ नहीं जानता। तीन गल्लां उस दे चों, मैं सीखना चाहना, मैं कुछ नहीं जानता, मैनू कोई ज्ञान नहीं, मैनू कोई बोध नहीं, मैं सीखना चाहना और मैं सीखण लई तैयार हाँ। सीखना चाहना, सिख सिखाण लई परमात्मा हर वक्त मौजूद है, हर वक्त। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, कुछ एक नूं जरूरी ज्ञान परमात्मा ने बड़ी खामोशी नाल दिता होया है। इस चक्कर च ना पैना कि ज्ञान सिर्फ मनुखां कोले, पशु पक्षियां कोल भी है। पंछियां नूं भी पता है कि आंडियां दे उत्ते 22 दिन बैठांगे इहदे चों बच्चे निकलणगे, और इन्हां पंछियां नूं भी पता है कि दाणा दुणका असीं चुक के लियावांगे, इन्हां दे मूंह च पावांगे तां इह पलणगे, वरना नहीं। ये उन्हां पंछियां नूं भी पता है। रहण लई आंडला किवें बनाना है और किस थां ते बनाना है ताकि बच्चे महफूज रहन, अंडे महफूज रहन, ये उन्हां नूं भी ज्ञान है, ये उन्हां नूं भी बोध है, ये उन्हां नूं भी पता है। जीवन दा ज्ञान परमात्मा ने सारियां दे अंदर पा दिता है, थोड़ा बहुत, जिस दे नाल वो अपनी जिंदगी चला सकन, जीवन बतीत कर सकन, रिज़क दी तलाश कर सकन। ये ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा ने सारियां नूं दे दिता है। पशुओं नूं ते इतनी सूझ दे दी है, सूंघण शक्ति, बई ये घास तेरे अनुकूल नहीं होवेगी, ऐ पशु तू खाएगा मर जाएगा। तो सूंघ के पशुओं नूं एकदम ज्ञान हो जाता है, ये घास मेरे अनुकूल नहीं है, नहीं खाती। गऊ नहीं खाएगी, मझ नहीं खाएगी, घोड़ा नहीं खाएगा। सूंघण शक्ति, नक दे च ही ऐसी शक्ति परमात्मा ने पा दी है, वरना कुछ हैं ऐसे घास भुलेखे नाल किधरे घास दे चों तिन के चले जान, गऊआं मर जांदियां ने। ढीला करके कहंदे ने पंजाब दे च उसनूं, किधरे भुलेखे नाल चला जाए, कतरन दे चला जाए। उन जंगल दे चरदी हुई गऊ सूंघण शक्ति नाल एकदम अंदाजा ला लैंदी है, ढीला है, ये जहरीला है, मैं नहीं खाना। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, बुनियादी ज्ञान परिपूर्ण परमात्मा ने सारियां नूं दे दिता है। जीवन किवें बतीत करना है, जीवन लई रिज़क किवें तलाश करना है। अगर ज्ञान सारियां नूं ही परमात्मा ने दिता है तो ज्ञान देण दे नाते परमात्मा गुरु हो गया, और ज्ञान लैण दे नाते कायनात दा जर्रा जर्रा सिख है, जर्रा जर्रा। ये गल वखरी है कि पंछियां नूं एहसास नहीं, असी भी परमात्मा तो सीखिया है ये सब कुछ। घोंसले किवें बनाने ने, बच्चियां दी पालना किवें करनी है, अंडियां दे चों बच्चियां नूं किवें कढना है। चिड़ी जद अंडे नूं तोड़ दिए इतनी सावधानी नाल कि मेरी चुंझ बच्चे नूं ना लग जाए, वो किधरे जख्मी ना हो जाए, इस तरह तोड़ दिए ते विचों बच्चे नूं प्रगट कर दिए। ये सारा बोध पशु जगत नूं है, कीड़े मकोड़ियां नूं है, पंछियां नूं है। ते जे बोध है, ज्ञान है, ते कित्थों लिया? जिथों आए ने ज्ञान उत्थों ही आया है। जिथों अस्थूल शरीर आया है, ये सूझ समझ भी उत्थों ही आई है। ते जिथों ज्ञान आया है, ज्ञान देण दे नाते परमात्मा गुरु है, ज्ञान लैण दे नाते मनुख नूं छोड़िए पशु पक्षी भी सिख ने। सिख कोई फिरका, टोला, मजहब नहीं है, धर्म है। अगर ये फिरका, टोला, मजहब आंदा तो यकीन जानो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च गुरु नानक दी बाणी तो इलावा कबीर लई कोई थां नहीं सी, फिर फरीद लई कोई थां नहीं सी।
फिर जयदेव, रामानंद, परमानंद, त्रिलोचन, इन्हां लई कोई थां नहीं सी। और गजब की गल यह है, सब वख-वख मंत्रां दा जप करते हैं। ये गल वखरी है कि सारे ही शब्द नूं गुरु मनते हैं। ये मैं अर्ज करते हैं। कल मैं अर्ज की सी, कबीर अपने गुरु का नाम दसते ने। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाम विवेको। हुण अपने गुरु का नाम भी दसते ने। जिसका नाम ज्ञान है, विवेक है, बस यही मेरा गुरु है। हद हो गई। ज्ञान यही थोड़ा गुरु है, पर ज्ञान लिया किथों? हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे। ओ भरता, ओ परमात्मा सर्वशक्तिमान, इस सब कुछ उस तो आया है, तो हुण होर मैनू किसी देही दी, किसी संत दी लोड़ नहीं। भगत कबीर। और यही कारण है, जिस तरह गुरु नानक भारत विच नहीं समझे गए, दुनिया च नहीं समझे गए, कबीर भी नहीं समझे गया। हमरो भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और हमरे निकट न आवे। उस संत दा, उस गुरु दा हथ हर वक्त मेरे सिर ते है और हर थां ते है। तो हुण होर हथ नूं मैं की करां, जिहड़ा हथ किसी कमरे च पिया होवे, किसी शहर दे, किसी मुल्क दे, हजारां मील दी दूरी ते वो हथ मेरे सिर ते पहुंच ही नहीं सकता। उस हथ नूं मैं की करां? कबीर कहंदे ने, मेरा जिहड़ा गुरु है उसका हथ मेरे सिर दे उत्ते हर थां ते है, मैं जिथे भी होवां। ओ हमारे माथे कायम, उसका हथ मेरे मथे ते कायम है, हर थां ते। गजब दी गल, हर थां ते, हर शहर दे उसका हथ थोड़े सिर ते है। कबीर कहंदे ने, हां, ओ हमारे माथे कायम, ओ मेरे मस्तक दे उत्ते उसका हथ कायम है। मैं जिथे भी चला जावां उसका हथ मेरे सिर ते है। मैं बैठा, उठा, चला, उसका हथ मेरे सिर ते। तो इस तो गल स्पष्ट हो गई, कोई गुरु व्यापक सतह है। तो कल मैं अर्ज की सी, जो सारी थावां ते नहीं हो परमात्मा नहीं है, और जो सारी थावां ते नहीं हो गुरु भी नहीं है। परमात्मा सारी थावां ते है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। गुरु सारी थावां ते है, गुरु मेरे संग सदा है नाल है। परमात्मा सारी थावां ते, इस वास्ते सारी थां ते अंग संग है। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते। गुरु सारी थावां ते, गुरु मेरे संग सदा है नाले। ते हुण परमात्मा ते गुरु दा बोध ना आवे, ये गल वखरी है। वरना ये सब थां ते मौजूद ने। जैसे सूरज की रोशनी ते हर पासे है, पर अंधे लई नहीं है। वो किधरे भी चला जाए रोशनी नहीं है। उन्होंने 10-20 बंदे व्याख्या करके समझान, रोशनी इंज आउंदी है, प्रकाश इंज आउंदा है, और वो व्यापक है। तो जो बंदा कह देवे, पहले मैनू दसो, दिखाओ, किस तरह दिखाइए? आखी कोई नहीं। दुनिया दे ऐसे अंधियां की तादाद बहुत घट है जिन्हां दी अखां दे रोशनी नहीं। ऐसे अंधियां की तादाद बहुत ज्यादा है जो अखां बंद करके ही चलते हैं, खोलने ही नहीं चलते, खोलते ही नहीं, सच्चाई नूं वेखना ही नहीं चाहते। और बहुत लंबे समय तक अखां कोई बंद कर लवे, अखां ते पट्टी बन लवे, तो कहंदे अखां अपनी रोशनी गवा बैठदियां ने। अजोके विज्ञानिक दसते हैं, अगर कोई 7-8 साल अखां ते पट्टी बन लवे तो 8 साल तो बाद खोलेगा, अखां आंदियां होणगियां, कुछ भी नहीं होगा, वेखण की समर्था नहीं होगी, वेख नहीं सकणगियां, क्योंकि उन्हां दी शक्ति की वरतों नहीं की गई, कुंद हो गई। परमात्मा प्रकृति चाहती है जे अंग दिते ने
इन्हां तो कम लै, और जितना कम लेगा तां ही स्वस्थ रहेंगे, तां ही ठीक रहेंगे। एक बंदा शरीरक कम ना करे लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करनी पै जाती उसनूं, वह भी तो शरीरक परिश्रम है, और की है, वह भी तो शरीरक मेहनत है, और की है। प्रकृति चाहती है हाथ कुछ करन, पैर कुछ करन, दिमाग कुछ करे। दिमाग तो बंदा कम ना लवे, यही कुंद हो जाता है, यह भी रह जाता है। अखां वेखण ना, और कोई मनुख तहखाने दे च रवे, अंधेरे च रवे, बड़ी मुद्दत तक रखे, अखां अपनी जोत गवा बैठणगियां। बहुत लंबे समय तक कोई पखंड दे च जीवे होवे ते पखंड नूं ही महान मनिया होवे, अगां चल के फिर उसदे लई सच सच नहीं रह जाता, मजबूरी। एक प्राकृतिक नियम है, एक बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। गुरु नानक ने ऐलानिया कह दिता, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, पवन अस्तंभ सतगुर मत वेला। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ए जो शब्द है ये गुरु है, मैं एक पासे होना, ये मेरी पकड़ दे च आया है, ये व्यापक है। तिह लोकां में शब्द रव्या है, ये शब्द 3 लोकां दे च व्यापक है। मैं फिर अर्ज करा, जो व्यापक नहीं हो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं हो गुरु नहीं। इत्थे बैंकॉक दे कोई समस्या खड़ी हो जाए किसी नूं, गुरु दिल्ली बैठा है, पुकार करोगे, जितनी देर दे प्लेन ते बैठ के आएगा इतनी देर च पता नहीं भोगी पै जाने, रहना भी है कि कुछ नहीं। इनू मिर्जा गालिब कहते ने, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर। परमात्मा प्रकृति चाहती है जे अंग दिते ने इन्हां तो कम लै, और जितना कम लेगा तां ही स्वस्थ रहेंगे, तां ही ठीक रहेंगे। एक बंदा शरीरक कम ना करे लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करनी पै जाती उसनूं, वह भी तो शरीरक परिश्रम है, और की है, वह भी तो शरीरक मेहनत है, और की है। प्रकृति चाहती है हाथ कुछ करन, पैर कुछ करन, दिमाग कुछ करे। दिमाग तो बंदा कम ना लवे, यही कुंद हो जाता है, यह भी रह जाता है। अखां वेखण ना, और कोई मनुख तहखाने दे च रवे, अंधेरे च रवे, बड़ी मुद्दत तक रखे, अखां अपनी जोत गवा बैठणगियां। बहुत लंबे समय तक कोई पखंड दे च जीवे होवे ते पखंड नूं ही महान मनिया होवे, अगां चल के फिर उसदे लई सच सच नहीं रह जाता, मजबूरी। एक प्राकृतिक नियम है, एक बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। गुरु नानक ने ऐलानिया कह दिता, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, पवन अस्तंभ सतगुर मत वेला। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ए जो शब्द है ये गुरु है, मैं एक पासे होना, ये मेरी पकड़ दे च आया है, ये व्यापक है। तिह लोकां में शब्द रव्या है, ये शब्द 3 लोकां दे च व्यापक है। मैं फिर अर्ज करा, जो व्यापक नहीं हो परमात्मा नहीं, जो व्यापक नहीं हो गुरु नहीं। इत्थे बैंकॉक दे कोई समस्या खड़ी हो जाए किसी नूं, गुरु दिल्ली बैठा है, पुकार करोगे, जितनी देर दे प्लेन ते बैठ के आएगा इतनी देर च पता नहीं भोगी पै जाने, रहना भी है कि कुछ नहीं। इनू मिर्जा गालिब कहते ने, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैं मनदा तू देरी नहीं करेगा, पर फिर भी जितनी देर तू आवेगा मैं ते खाक हो जाना है, मेरी होंद ही नहीं रहनी। मैनू ऐसा मददगार चाहिए जो मेरे नाल हर वक्त होवे। गालिब भावें दुनियावी शायर होया है, और इतनी गल तो मननी पेगी कि धर्म दियां भी कुछ बारीकियां नूं इसने बड़ी गहराई नाल छोया है। ऐलानिया ते कुछ नहीं कह सकिया क्योंकि मुगलों की हुकूमत सी, बहादुर शाह जफर के टाइम दे होया है, ते शरह दा माड़ा मोटा कानून भी चलता सी, लेकिन इशारतन बहुत कुछ कह गया। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को, लेकिन शब्द कह गए। ऐ मौलवी, मैं जानदा जन्नत किसनों कहंदे ने, बैकुंठ की है, पता है, मैं इसनों समझदा। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को, लेकिन
दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ए मौलवी, तेरा ख्याल सिर्फ दिल बहलावा है और कुछ नहीं, झूठा लालच। तू जो कुछ जन्नत दे नक्शे खिंचदा है बई उत्थे हूरां ने, उत्थे अंगूरी शराब है, इत्थे बोतलों च मिलती, उत्थे शराब दे चश्मे पे चलते हैं, कंचन दे महल ने, इत्थे तेनू सेंट लाना पैंदा, उत्थों की हवा ही खुशबूदार है, सुभावक ही खुशबूदार है जन्नत। गालिब कहता है अगर यही जन्नत है तो फिर नमाज पढ़न की लोड़ नहीं, लेकिन जिहड़ा शब्द कह गया इशारतन, फिर तो बंदगी करन की लोड़ नहीं। इस तरह की जन्नत जमीन दे उत्ते मौजूद है, नरक ते स्वर्ग जमीन ते मौजूद ने, जिस ते कुल सारे इंद्रियां दा रस मौजूद है। भारत विच आख्या गया इंद्र है, यह स्वर्ग दा देवता है, ये कोल स्वर्ग है। क्यों? ये कोल अखां दा रस भी है, कन्नां दा रस भी है, जबान दा रस भी है, खलड़ी दा रस भी है, नासका दा रस भी है, सारे रस मौजूद ने इंद्रियां दे। और जेड़ा इंद्रा चाहे जिस वक्त चाहे रस नूं मान सकता है इंद्र, और किस नूं इंद्र कहंदे ने, ये स्वर्ग दे च है। गालिब भी यही कहंदा है ते इत्थे मौजूद है। इशारतन इकबाल ने भी रद्द कर दी इस तरह की जन्नत नूं। बहिश्त हूरो गिलमा इफ्ज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ए मौलवी, ये जिहड़ियां तेरियां गल्लां ने ये धर्म नूं कमजोर करने वालियां ने, पर खुले रूप दे इकबाल भी नहीं बोलता, गालिब भी नहीं बोलता शरा दा कानून, पर कहंदे असीं जाणदे हां, सानू पता है जन्नत किस नूं कहंदे ने, सानू पता है खुदा की है। सब तेरियां भौंडियां गल्लां ने। धर्म दे नां ते इतना अधर्म चलता है धार्मिक अस्थानां दे विच, धर्म दी दुनिया दे विच, जिन्हां ने धर्म दी मोहर लाई हुई है, और दुनिया भटक के रह जाती है। चाहे वह इस्लामी जगत है, चाहे हिंदू जगत है, चाहे सिख जगत है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, बड़ी अज्ञानता, बड़ी ना समझी। एक पासे आउंदे गए शरीरक रूप दे गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, एक पासे आउंदे गए, किधरे काया नूं ही लोकी अगे ना कर देन, शब्द नूं अगे करते रहे। जिस दिन दरबार साहब दे प्रकाश होया, हरिमंदर साहब दे इक्को ही कथा हुई है, उस तो बाद मंजी साहब बाहर जो अस्थान बने होया है, पहले गुरु अर्जन देव जी कथा करते रहे, उस तो बाद भाई गुरदास जी करते रहे, परंपरा के मुताबिक अजे तक वो चल रही है। गालबन कोई 25-30 दिन साल दे साल दास भी हाजरी उत्थे बरदा हुंदा है। गुरु रामदास जी के गुरपुरब तो लैके दिवाली तक ये परंपरा गुरु अर्जन देव जी ने चलाई सी। हरिमंदर साहब दरबार साहब दे केवल कीर्तन होंदा है, पर एक कथा हुई है, और वो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की थी। और जिहड़ी कथा से उसनूं कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप सूरज दे च लिखे है। जिस तरह की कथा लिखी हुई मैं थोड़े सामने रखा। जो संगतां बैठियां सन, जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश होया, संगतां ने आपनों कहा आप ताबिया ते बैठो। आप कहने लगे नहीं, बाबे बुढ़े नूं बिठाया। कहने लगे पोथी परमेश्वर का स्थान, मैं साक्षात परमात्मा की बराबरी ते किस तरह बैठा। गुरु अर्जन देव जी आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, चद्दर विछा के थल्ले सौंदे सन, पलंग दे उत्ते सुखासन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा हुंदा सी। याद दे च अजे तक चद्दर विछाई जाती है कोठा साहब दे च, अज तक, अजे तक। प्रकाश तो बाद आप सतगुरु कदी चारपाई ते फिर नहीं सुते, पलंग ते नहीं सुते, थल्ले। पोथी परमेश्वर का स्थान, चानना सूरज का रूप है, ज्ञान परमात्मा का रूप है। उस दिन जो पातशाह ने कथा की थी वो मैं थोड़े सामने रखा। सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब नाम दरस हैं। जिस शरीर नूं तुसी सतगुरु कहंदे हो, इस शरीर दे सारी थां ते दर्शन नहीं ने। मेरी काया हर थां ते नहीं है, हर वक्त नहीं है, हर थां ते नहीं है। गुरु अर्जन देव जी
सतगुरु के शरीर हैं जो सब थान समय सब ना दर्शै हैं। ग्रंथ हृदा गुरु को एव जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝੇ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। फिर अगली जिहड़ी तीसरी पंक्ति भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने लिखी है, और इतनी गल ते मननी पैगी, और सियाणे मन रहे ने चंगे चंगे विद्वान कि कवि संतोख सिंह ने जो कुछ लिखे है, विद्वान कहते ने एक कविता मानो उन्हां दी जबान ते इंज वसी है जिवें किसी पहाड़ चो झरना निकलता है, जिवें परमात्मा आप ही बोली जा रहे। 10 गुरुआं दा इतिहास सारा कविता दे नज़म दे और उहदे च बहुत वड्डा ज्ञान भी ते इतिहास भी इन्ना सारा। अज कोई सिलसिलावार पढ़न भी लगे तो कई महीने चाहिए ने, पर गजब की गल सारा कविता दे च निकलिया। और ऐसी कविता दे जिहड़ी महान है, जिसका कोई मुकाबला नहीं अज तक। बिना रब्बी बख्शिश तो नहीं हो सकता, बिना ईश्वरी कृपा तो नहीं हो सकता, और बिना पूर्वले संस्कार तो नहीं हो सकता। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते हैं, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यह उपदेश दिता। हां, सिख जगत इनकारी नहीं। परमात्मा की पहचान किस तरह होगी कि इस मनुख के अंदर प्रगट हो गया, गुणा तो होगी। सब गुण तेरे मैं नाई कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। चानणे नूं वेख के, घर दे चानणे नूं वेख के मनना पैगा सूरज दीयां किरणां इस घर दे प्रवेश कर गईयां। चानणा, दरवाजे खुले ने, बारियां खुलियां ने, तो सूरज दा चानणा घर दे चला गया। पर्दे लगे ने, दरवाजे बंद ने, बारियां बंद ने, कमरे दे च अंधकार है। सूरज दीयां किरणां नहीं अंदर प्रवेश कर रही, भावें द्वार ते दस्तक दे रही ने। कहते ने परमात्मा गुरु हर एक दे दिल दे बूहे ते खड़ा है, हर एक दे। जिवें सूरज दीयां किरणां हर घर दे बूहे ते खड़ियां ने, सिर्फ बूहा खोलण दी देर है, अंदर चानना ही चानना। हिरदे दा द्वार खोलण दी देर है, शब्द अंदर प्रवेश कर जाता है, प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है। मनुख ने बूहे ही बंद किए। तो पहचान किस तरह होगी? इत्थे प्रभु प्रगट हो गया गुणा करके। ते परमात्मा दे गुण की ने? वो निर्वैर है, वो प्रेम दी मूर्ति है, वो दया दा सागर है, वो करुणाकर है, उहदे च भय नहीं है। ये गुण ही ते ने उसदे, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सेवं, ये सारे उसदे गुण ने। जद कोई निर्वैर हो जाए, निर्भय हो जाए, दया दी मूर्ति हो जाए, प्रेम दा सागर हो जाए, विशाल बिरती दा मारक हो जाए, सारे उसनों एक दिखाई देन, जैसे परमात्मा साझा है तो इस तरह साझा हो जाए। तो कई दफा कुछ विद्वानों ने कह दिता है, परमात्मा दे प्रत्यक्ष गुणां दे दर्शन करने ने तो ये कर लो। भट्टा ने इंज कह दिता सी, भण मथरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन परतख। परतख वेखना ने कि परमात्मा दयालु है, निर्वैर है, निर्भय है। नहीं वक़्त दी हुकूमत तो डरदे ते ना वक़्त दे दुष्टां तो डरदे ने, निर्भय। तो दर्शन कर लो गुरु अर्जन देव जी दे, निर्वैरता दे दर्शन कर लो, शांति दे दर्शन कर लो, प्रेम दे दर्शन कर लो, ज्ञान दे दर्शन कर लो, निर्भयता दे दर्शन कर लो, विशालता दे दर्शन कर लो। ये प्रत्यक्ष दे गुण। पट इंज कह रहे हैं, असीं ते प्रत्यक्ष वेख लिया। दया किस नूं कहंदे ने, ज्ञान किस नूं कहंदे ने, प्रेम किस नूं कहंदे ने, निर्वैरता किस नूं कहंदे ने। इतना निर्वैर हिरदा और इतना निर्भय है कि सारा हिंदुस्तान जिस जहांगीर की मुट्ठी दे होवे उस नाल मत्था मारन नूं तैयार हो गए ने, और उस दे अगे झुकण तो इनकार। जितने भारत दे सारे संत ने, सब राजनीतिकां दे पिछे चलण वाले ने, अगे चलण वाले नहीं ने। यह भी मैं अर्ज करदे हां, उन्हां दे पिछे हथ जोड़ के खड़े ने। वो जिवें चलते ने त्यों चलते पे ने। सारी दुनिया करीबन करीबन इस तरह होंदा है। जहांगीर दे वक्त भी कुछ फकीर जो जहांगीर ने काबू किए सन,
उन्होंने कह दिता सी तुसी सब कुछ कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि शराब हराम है। जहांगीर सारा दिन पींदा सी, हर वक्त नशे डुबिया रहिंदा सी। किसी मौलवी ने, किसी फकीर ने यह नहीं आख्या यह हराम है, चुप कर गए। सारे खामोश। सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी जे आख्या तो खैर कोई नहीं। जहांगीर ने तजियां उड़ा देनियां ने। उन्हें अपने पुत्र नूं तड़पा तड़पा के मारिया खुसरो नूं। सानू की माफ करेगा? सानू किथे जो है छोड़ेगा? कुरान की तलावत भी करनी होवे, व्याख्या भी करनी होवे तो जहांगीर की मन मर्जी के मुताबिक मौलवी करते सन। जो कुछ कुरान दे लिखे वो नहीं। बई यह गल इस दे नाल तालमेल नहीं खाएगी, औखा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। मुंह वेख के गल करनी, मुंह वेख के चुप कर जाना, मुंह वेख के गल करनी मूर्छत। इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने मूरख। सिर्फ मुंह ही रखता है, मुंह वेख के गल करता है, मुंह वेख के चुप कर जाता है और बिल्कुल अंदरों मूर्छत है, बेहोश है। सोच के नहीं, जमीर नहीं बोल रही, बोल रहा है मुंह वेख के। अगले का मुखड़ा कितना क बर्दाश्त करेगा और अगले का मुंह की सुनना चाहता है। चुप कर जाएगा मुंह वेख के, बई ये गल ऐ मुंह नहीं सुन सकेगा। मूर्छत, मूर्ख। ये मूर्खां दा टोला जहांगीर दे आले दुआले। गुरु अर्जन देव जी ने मत्था मार लिया। ये नहीं हो सकता कि तेरी हर गल नो, तेरे हर हुक्म नो सिर मस्तक ते रख दईए। तू बादशाह जरूर है, इंतजाम कर रहा है आदा, धर्म की तेन सूझ नहीं, समझ नहीं। इस दिच की मदाखलत, इस दिच की दखल अंदाजी। अंजाम की होया? गुरु अर्जन देव जी की काया की शहादत। देखण नूं इंज पता चलेगा, बड़ा दुख, तत्ती तवी, उबलदा पानी, गरम गरम रेता, पर कितना जिगरा होंदा है। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा दे विच ये दिखाया है। आगया में भूख, सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लय मान्यो। परमात्मा दे हुक्म नूं मनना की है, ये प्रतख वेखे है गुरु अर्जन देव जी दे विच। निर्वैरता की है, प्रतख दिखाई दे रही है। दया की है, प्रतख दिखाई दे रहा है। प्रेम की है, प्रतख दिखाई दे रहा है। ज्ञान की है, प्रतख दिखाई दे रहा है। इन्ना ज्ञान सुखमनी साहब दी, सुखमनी साहब दी एक एक अष्टपदी विच ब्रह्म ज्ञान। 12 माह है आप दी रचना, संस्कृति श्लोक आप दी रचना है, फुने छंद ने, फिर गाथा है, चौबोले है, सब तो ज्यादा बोल ने। जो प्रभु दे बोल पकड़ते चाहे तो आपने जगत दे सामने रखे। और आपने जिहड़ी पहली कथा की थी वो मैं थोड़े सामने फिर रखते हाँ। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, सतगुरु के शरीर है जो, जिस शरीर नूं तुसी सतगुरु कहंदे हो, सब थान समय सब नां दरसै हैं, इस दे दर्शन सारी थावां ते नहीं ने। पर यह शरीर थोड़ी मदद हर थां ते नहीं कर सकता। ये दर्शन तुसी हर थां ते नहीं कर सकते। इसदा मतलब है गुरु किसे थां ते है ते किसे थां ते नहीं है। गुरु दे दर्शन हर वक्त नहीं हो सकते, तो जिहदे दर्शन ही हर वक्त नहीं हो सकते उस गुरु नूं धारण करने की की लोड़ है। जो किसी कोठे च बैठा है, किसी कमरे च बैठा है, किसी एक शहर दे च बैठा है और पूरे शहर दे च भी ना होवे, शहर दे किसी एक गुठे च होवे। मैं फिर अर्ज करा, कतई किसी ईरखा वस हो के मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी है। और इसनों भी मैं पिछे छुपावां तो कम से कम गुरु ग्रंथ साहब का तो देनदार हाँ। फिर मैं मसंद क्यों प्रवान नहीं होए? मसंदा ने भी कुछ गल्लां छुपा लियां, नहीं कहनियां। क्यों? अगर वो कहंदे तो खुद गुरु नहीं बन सकते सन। उन्होंने खुद गुरु होने का दावा कर दिता सी, खुद नहीं कह सकते सन। ये जिहड़े डिंबी गुरु ने, भावें इन्हां दे डेरियां च भी प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का ऐलानिया कहंदे ने, असीं प्रकाश कीता होया है, लेकिन गरजब की गल है प्रकाश करके ही प्रकाश नूं पिछे सुटे, अपने आप नूं अगे कीता है। गल ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब का तो आसरा लेना है ताकि गुरु ग्रंथ साहब नूं मनण वाले साडे कोल इकट्ठे होण ते फिर असीं अगे हो जाइए तो गुरु ग्रंथ साहब नूं पिछे कर दईए। बस इन्नी गल है जो भोली दुनिया समझदी नहीं।
ना समझते ने, बोध ने, या इतनी वड्डी गलती कर चुके ने, इतने अगे जा चुके ने, हुण जे पिछे मुड़न ते गलत साबित होंदे ने। हंकार नूं चोट लगदी है। सतगुर दी बाणी भी कहती है, कल युग में अनेक धड़े, पंच चोर झगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए। धर्म दे नां ते अपने अपने धड़े खड़े हो जाणगे, और जिहड़े धड़े खड़े होणगे वास्तविक धर्म नहीं होवेगा। हंकार करके खड़े होणगे, लोभ करके खड़े होणगे, अभिमान करके खड़े होणगे। गुरु नानक दी बाणी इतना हंकार वध गया, हुण नाल चलना गुरु दे औखा है। अपनी होंद चाहिए है। इतना लोभ वध गया, जे गुरु दे नाल गए तो लोभ की उतनी पूर्ति नहीं हो सकेगी। अलग धड़ा। इतना अभिमान वध गया, जे गुरु दे नाल चले गए तो असी तो नंबर 2 होवांगे, असी नंबर 1 होना है। तो गुरु नूं पिछे सुटो, आप अगे हो जाओ। गुरु दा प्रकाश करके भी गुरु ते पढ़दा, जो गुरु गोपे अपना से नर बुरे आरी। गुरु अमरदास जी कहते ने, बस यही दुष्ट ते बुरे मनुख ने गुरु की गल करके गुरु ते पढ़दा पांदे। ये पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब जी दी। जो गुरु गोपे, गोपे कहते हैं गोपत, गुरु की गल करके, गुरु ग्रंथ साहब की गल करके फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं गोपत करना, पिछे सुटना। जो गुरु गोपे अपना ते नर बुरे आरी। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस दिन जिहड़ी कथा की थी, जिस तरह की लिखित है, मुख्तसर में एक दफा थोड़े सामने फिर रख दें। सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दरस हैं। इतनी गल वही कह सकता जिस दे अंदर कोई हंकार नहीं, निर्माणता की मूर्ति, गरीबी की मूर्ति, विनम्रता की मूर्ति। मेरी इस काया के दर्शन हर थां ते नहीं कर सकते, तो जब हर थां ते नहीं कर सकते तो मैं सतगुरु किस तरह। गुरु अर्जन देव जी कितनी वड्डी गल कहते ने। गुरु रामदास जी का दाड़ा इतना वड्डा सी, जब आप खड़े हो जान तो दाड़ा जमीन ते लगदा सी। ऐसा होंदा है। दास जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा, बाबा बलवंत सिंह सन 73 दे गुजर गए। पुराने सारे बजुर्ग जानते हैं, क्योंकि सारे देश चो कथा भी करते रहे। वह भी जब खड़े होंदे सन दाड़ा जमीन ते लगदा सी, इन्ना वड्डा दाड़ा। ते जब कथा करन बैठते सन, दाड़े नूं मोंडे ते रखते सन। बाबा बलवंत सिंह पैरां थल्ले आंदा सी, इन्ना वड्डा दाड़ा। कुदरत ने कुछ इस तरह की किसी किसी नूं बख्शिश की होंदी है। कहते ने सिर दे केस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इतने लंबे सन, इतने लंबे सन, जिस दिन आप केसी स्नान करते सन, खड़े होवन तो केस जमीन ते लगते सन। मुखड़े दा दाड़ा गुरु रामदास जी दा इतना वड्डा सी, इतना वड्डा सी, लंबा सी, जब आप खड़े होवन तो दाड़ा जमीन ते लगदा सी। बाबा श्री चंद कार भेट लैण लई आए, क्योंकि उदासियां दे तमाम डेरियां नूं खर्चा गुरु घर तो मिलदा सी। और ये 10वें पिता तक सिलसिला चलता रहा। उदासियां दे डेरियां दा खर्चा गुरु घर तो जांदा सी। साधुआं दे कपड़े, साधुआं दे धूणे लई लकड़ा, लंगर लई अन्न पानी, और ये साधु थां थां ते प्रचार कर सकन, दूर दूर जा सकन, इन्हां नूं घोड़े भी गुरु घर तो खरीद के दिते जांदे सन। उस जमाने की असवारी बाबा श्री चंद घोड़े ते असवार होके आए। सिर्फ महीने दे महीने जो कार भेट लैण लई आंदे सन आए। पर अज बाबा श्री चंद नूं सुते सिद्ध किधरे मजाक फुर पई, उंज करदे नहीं आउंदे सन। बड़े गंभीर पुरुष सन, भजनीक पुरुष, जुड़ी हुई आत्मा सी, लेकिन अज किधरे मजाक फुर पिया, कदी कदी होंदा है। गुरु रामदास जी का इतना लंबा दाड़ा देख के, चूंकि बाबा श्री चंद की बिल्कुल मस्सी अजे फुटी सी, वो उन्नी रह गई, कईयां दे नहीं वधदे। केस बहुत लंबे सन सिर दे बाबा श्री चंद दे, मुखड़े का दाड़ा लंबा नहीं सी, बिल्कुल जिवें किसी की मस फुटदी है, बस इतनी सी। इंज कवि संतोख सिंह जी ने लिखा है। और इतना लंबा दाड़ा, कुदरती गल है, मजाक भी सुझ सकती है तो हसरत भी पैदा हो सकती है। मेरा नहीं, मेरा ये दाड़ा नहीं होंदा है। एक रागी सिंह है, बड़ा चोटी का कीर्तनी है लखनऊ दे, अवतार सिंह कीट,
बेचारे दी इन्नी दाड़ी है। तो एक दिन 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ले गया तो मैनू खिंच के ले गया गुरुद्वारे चों लखनऊ की गल। लंगर छकाण तो बाद कहने लगा मस्कीन जी अरदास करनी है। मैं कहा की लोड़ पै गई थानू इस तरह की, क्योंकि तुसी जिस ढंग नाल कह रहे हो कोई विशेष अरदास करनी है। कहने लगे हाँ मेरा दाड़ा ने, मैनू शर्म आउंदी स्टेज ते बैठते हैं। उम्र 50 तो ज्यादा टप गई है, दाड़ा है नहीं, शर्म आउंदी। बड़ियां दवाइयां कीतियां ने और नाल एक वैद भी सी बाबा बिशन सिंह, इस वक्त हैं मौजूद, 111-112 साल दे ने। ते उन्होंने भी कहने लगे बाबा जी तुसी कुछ दवाई भी दसो, कोई दवाई भी दसो, अरदास भी करो। मैनू कहने लगे ते बाबा जी कोई दवाई भी दसन, दाड़ा आना चाहिए। मेरे मुंह सुते सिद्ध किधरे गल निकल गई। मैं क्या हद हो गई ज्ञानी जी, जिन्होंने दाड़ा ना आवे वो दवाई लभदे ने ते जिन्होंने आ जाए वो नाई लभदे ने। उल्टी गल है, समझ नहीं आई। जिन्होंने ना आवे वो कहते दवाई चाहिए है, ते जिन्होंने आ जाए कहते हुण नाई चाहिए। हसरत होंदी है, ना आवे दाड़ा ना निकले शर्मसारी होंदी है, हसरत पैदा होंदी है। लगता है ऐसी हसरत बाबा श्री चंद के अंदर भी पैदा हुई, दाड़ा नहीं है। हाथ जोड़ के कहा है गुरु रामदास जी ने, इन्ना वड्डा दाड़ा क्यों कीता है, इन्नी लंबी दाड़ी। धन गुरु रामदास जी महाराज उसे दाड़े नाल बाबा श्री चंद दे चरण झाड़न लग पे। आख्या गुरमुखो ए महापुरुषो थोड़े चरण झाड़न लई रखे। अखां भराइयां बाबा श्री चंद दियां, कहने लगे बस ए निर्माणता ही लै गई थानू, साडे कोल सब कुछ जांदा रहा, ए निर्माणता करके तुसी सब कुछ ले गए, सब कुछ ले गए। परमात्मा कितना निर्वैर है, कितना निर्माण है, कितना निरंहंकार है, कितनी वो प्रेम की मूर्ति है, कितना बर्दाश्त का मादा है। पट कहते हैं प्रतख वेख लो गुरु अर्जन देव जी ने, बन मथरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर। परमात्मा दे प्रतख गुणा दे दर्शन कर लो। परमात्मा कितना निर्वैर है वेख लो, परमात्मा कितना प्रेम का सागर है वेख लो, परमात्मा दे कितनी दया है वेख लो, और परमात्मा कितना ज्ञानी है ये ज्ञान भी वेख लो। बण मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन परतख हर। पर यह महान मूर्ति संगतां दे सामने जो उपदेश करते हैं वे सतगुरु के शरीर है जो सब थान समय सब ना दरसैं। ग्रंथ रिदा गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल है रहे। वो जो शब्द जिन्होंने ग्रंथ की शक्ति, ग्रंथ कहते हैं इकट्ठे नूं इकट्ठा किया है, वो जो शब्द जिन्होंने ग्रंथ का रूप दे दिता है, शब्द गुरु है, ग्रंथ इकट्ठा किया है तो गुरु ग्रंथ। ये शब्द हिरदे च नहीं सी तो अमरदास सी, तो अमरदास नूं लोकां ने इंज भी कहा ये निथावा, अद्धी अद्धी रात भटकण वाला। शब्द आ गया तो निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे मान गुरु अमरदास, न्योटियां दी ओट गुरु अमरदास। ये शब्द सारे एक पासे कर दो तो ग्रंथ ने, शब्द है तो फिर गुरु ग्रंथ। इतनी मैच करते हैं। ग्रंथ रिदा गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। और ये पंक्ति सुनने वाली भाई संतोख सिंह जी कहते हैं जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आखी, मेरे स्वरूप ते याते है दीरग साहिब जान अदायब कहो। ये मेरा हुक्म मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जाना, क्योंकि मैं खुद पुजारी हूं, मैं खुद मत्था टेकदा। दीरग कहते हैं वड्डे नो, मेरे स्वरूप ते याते है दीरग, किधरे मैनू ही वड्डा जानो नहीं, मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना। क्यों? उत्तम है सब काल रहे हैं। शब्द दे दर्शन हर थां ते कर सकोगे, शब्द दा जप हर थां ते कर सकोगे, शब्द नूं हर थां ते पढ़ सकोगे, शब्द नूं सदा नाल रख सकोगे। मैं सदा नाल नहीं,
शब्द दे रूप दे गुरु सदा संग, गुरु मेरे संग सदा है नाले। जो सदा संग नहीं हो परमात्मा नहीं, और जो सदा संग नहीं हो गुरु भी नहीं। जो सदा संग है उसे नु गुरु बनाना है। इस वास्ते सतगुरु की बाणी इंज कह रही है, सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जांका नाओ विवेको। बाकी खुलासा कल मैं बहुत समा लै गया, चूंकि गल मैं इथों आरंभ की सी, जिस पुत्र नूं पिता दी होंद दा नहीं पता, तो समाज उसनूं गिरा होया समझदा है। ये ठीक नहीं है, ये तो नाजायज औलाद है, गलत है, समाजिक नियम के मुताबिक नहीं। इनू तो पिता का ज्ञान ही नहीं होवे तो सिख ते तेनू गुरु का ही बोध ना होवे। और जो गुरु वाकई है ही नहीं, जो पिता तेरा है ही नहीं, कदी आखे ओ पिता है, कदी आखे ओ पिता है, कदी आखे ओ पिता है, तो एक मर गया फिर दूजे नूं प्यो बनावे, वो मर गया तो फिर तीजे नूं प्यो बनावे, तो मजाक हो गई। शब्द ना मरदा है ना जमदा है, जदों दा परमात्मा है उदों दा शब्द है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। इस वास्ते इकबाल ने कह दिता, एक कोई अवतारी पुरुष जगत दे आया जिन्हें कह दिता शब्द गुरु है, और ये गुरु नहीं समझा गया, गुरु नानक नहीं समझे गए। शमा हक से जो मुनव्वर हो वो ये महफिल न थी, बारिश रहमत हुई पर जमी काबिल न थी। एक गल वखरी कि मोहम्मद साहब ने भी कह दिता, ये जो कुछ होया है मेरे ते अलहाम होया, मेरे अपने बोल नहीं, खुदा दे बोल ने, इन्हां नाल जुड़ो, मैं एक पासे होना। कलगीधर ने ते ऐलानिया कह दिता, जो हमको परमेश्वर उचर हैं ते सब नरक कुंड में परे। तो फिर तुसी कौन, मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। गुरु दी पहचान हो गई, पता चल गया। तो इंज जिवें बच्चे नूं अपने पिता दी पहचान हो गई, पिता दा पता चल गया, कौन है साडा नादी पिता, कौन है साडा बिंदी पिता। इस तरह का ज्ञान लाजमी चाहिए है। इस प्रकरण नूं एक दो दिन कोशिश करांगे, कुछ होर विषय काफ़ी ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे मजमून, जिंदगी के कई पहलू ने, धर्म के कई पहलू ने जिन्हां नूं जानना है, समझना है। पर समय की गति के मुताबिक मैं तो पहले सोचिया सी 2-3 दिन गुर शब्द, इसकी विचार वास्तविक गुरु की है, पर इंज लगता है गुरु चाहता है नहीं ये गल चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। तो मैं देखना रोज इरादा करके बैठता हाँ समाप्ति करनी है, पर मैं देखना शब्द की समाप्ति नहीं होती, समय की समाप्ति हो जाती है, मेरी सोच शक्ति की समाप्ति हो जाती है, मेरे कहने की जिहड़ी शक्ति है उसकी समाप्ति हो जाती है, गुरु की विचार की समाप्ति नहीं होती। तो बाकी विचारां कल इत्थे समाप्ति, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान